Shall we start? Yeah, no, it's not. Okay. Good morning, everyone. My name is Kapil. I will be like hosting this event today. So everything we are presenting today is all about Dubai market, and we are dealing with one of the beautiful an exclusive project what we have underwritten right now, and the opportunity what you guys can grab from these projects. So first of all, I'll explain you that what Dubai, why Dubai, and why should you guys invest in Dubai. And these are the few details and the few slides which we have recently like presented all of our across the globe. Like in Canada, we have hosted these events, and in Dubai also. Then majorly with other developers also. Now we are focusing on Azizi. So I'll explain you that what Azizi is offering you guys and what are the opportunities. But first of all, let's go to the uh, can we go to the slide number 3? Uniform. Yes. Uh, there is a background noise. No, it's okay, Kapil ji. I think you should unmute yourself. Hello. Yeah. Am I audible to you? Yeah. Okay. Let's start the video. So this is a small journey of Dubai from 1960 to 2023. That how this market is growing, and starting from the Dubai side, and it's growing. So just enjoy the video, and then I'll explain you each and every details. Mm.
So guys, this is a small video just to show you that how Dubai has been built from past like 40 years. It's kind of a bare land parcel when like His Highness has started it. Now their visionary projects has already been they have already delivered all of the locations. Guys, can you please mute for like at least half an hour because it's kind of very disturbing for us. It would be very helpful for the other people also who have joined. Done. So can we go to the next slide? आई थिंक आपको दोबारा ओपन करना पड़ेगा उस स्लाइड्स में. यस. So it was a earlier picture, 1980. अगर आप देख सकते हो on the left hand side and on the right hand side it's 2023. So same thing they have converted with a skyscrapers and everything. Now, if we move to the next slide, I'll tell you the points and the bullet points that why to invest in Dubai. So these are the top 10 points that why a person has to invest or why should he invest in Dubai. The first point is the world-class infrastructure. Any other city, any other country, if you go around the world, आपको इतनी amenities, इतना world-class infrastructures नहीं मिलेगा. इन सारों को मैं details में in the next slides I'll explain. Second thing, there are the tax-free income. So, आप कोई भी country जाते हो, you will not find a tax-free income kind of concept. Plus, जो भी आप rentals यहाँ से earn करते हो, these are also very tax-free. So, आप कितनी कोई भी income यहाँ से generate करते हो, doesn't have to pay the tax to the government. Then the third point is the economic growth and the stability. Dubai is growing from past like 20 years, and it's been growing, and plus the visionary projects जो हमारे 2040 के अंदर His Highness के plans हैं, they are extremely growing. I'll show you the numbers also कि पहले क्या numbers थे and अभी क्या numbers हैं according to the population also or in the transaction what is happening in Dubai. So you will see the difference. Then you have world-class events. So according to the like stats, if you see uh, every day, every month, and every week, you will see a lot of events across the globe जो दुबई के अंदर होते हैं. If you have guys noticed, पीछे एक्सपो भी हुआ था, and that उसने like दुबई के मार्केट के अंदर have a great boom. A lot of investors are coming from Russia, Sri Lanka because of the bankruptcies and the wars and everything. A lot of investors from UK, Russia. Then you have Chinese are the major investors. Then 80% of the investors are from India. So हम लोग अभी इंडिया के अंदर इसीलिए इवेंट कर रहे हैं because at the end of the day, Indians are the major investors in Dubai. Why? Because of the tax free thing. Because जब हम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, it doesn't get the tax free concept over here. Then you have growing population and demand. You have a high rental yield. Dubai is the only country across globe जहाँ पर आपको bare minimum 6% मिलता है. Across globe आप कहीं पे भी जाते हो, it is approximately 2 or 3, 2 से लेके 4 के bracket में रहता है, but Dubai minimum 6% target करता है. मैं फिर से वही point बोलूँगा, this is tax free. Then it's a biggest aviation hub. Major जितनी भी आप cities हैं, countries हैं, आप majorly 6 hours के अंदर cover कर लेते हो. Then you have a strongest regulations. It's a safest country across globe after Finland. Then you safeties के measure आप देखोगे, so like if you go to London, if you go to US, other countries like Canada and all, people feel unsafe over there. But Dubai, ये सारी चीजें नहीं होती. Dubai is a very safe country. Why? Because there are a lot of regulations, there are a lot of compliance जो follow करते हैं, and they're very strict to that. And everything is according to the residents के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं होता. Like only and only rules are governed, and जो भी regulatory आती है, this is only in favor of the customers or the people who are investing over there. Then you have a high standard of living.
सो इन सारी चीजों के बारे में आई गिव यू द एग्जैक्ट नंबर्स के गूगल से हम लोगों ने या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से हम लोगों ने काफी रिसर्च करके वी हैव कम अक्रॉस द नंबर्स, वो हम आपको शो करेंगे. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? So these are the this is a small picture which we have taken. So ये जो area है आपका business bay downtown, this is a major area if you see in Dubai. A lot of people know that uh, किसी ने भी अगर दुबई के बारे में सुना होगा, बुर्ज खलीफा is the first point of thing जो जो सबको पता होता है, like that is the major attraction in Dubai. The first thing. This is your Sheikh Zayed Road. This is a road which is connecting all of the Emirates, like Abu Dhabi on the left hand side. On the right hand side, it's connecting towards the Sharjah, but Dubai areas, and all the skyscrapers are on this side. So, pura initially Dubai is running on this road. Or major road hai ye because of the metro line, and people are only working in these locations, and the rentals and the demand on the property side are very high on this road. Now let's move to the next slide. This is a world-class infrastructure thing. Now, why it's tax-free? So these are the bullet points which we have taken. So there is no income tax. There is no capital gain. Suppose if you like resell your property, if you put on like Bayou Property Finder and the other thing, plus if you give some agencies like us, will sell your property, and whatever the capital you gain, उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता. सो आपकी इनकम भी फ्री हो गई, देन आपका प्रॉपर्टी का कोई टैक्स नहीं हुआ, जो आपने गेन किया उसका कोई टैक्स नहीं है. रेजिडेंशियल के ऊपर कुछ वैट नहीं लगता, जैसे इंडिया के अंदर वैट्स लग जाते हैं. देन ऑन द कमर्शियल प्रॉपर्टीज आल्सो देयर आर वैट, बट दुबई के अंदर देयर आर फ्यू डेवलपर्स वो वैट को वेव ऑफ करा देते हैं बिकॉज दे आर पेइंग फ्रॉम देयर साइड. सो कस्टमर के बिहाफ पे वो भी काफी लाइक एडेड एडवांटेज हो जाता है. then you have a then you have no tax on the rental incomes also. So jo aap income, so everything is a tax free over there, and these are the main factors why a person should invest in Dubai. Then there is a stable economy because government same hai unki. It's not like the other countries jahan par you have a different kind of politics and all those things. Yahan par wo nahi hai because they have a very specific rule. His Highness and their जो उनके बच्चे होंगे एंड ऑल दोस थिंग, दे वो ही सारी चीजों को फॉलो करते हैं, एंड एक ही रूल गवर्न होता है, वो पूरी कंट्री के अंदर गवर्न होता है. दे हैव अ कंसिस्टेंट जीडीपी ग्रोथ. सो आप अगर लास्ट 10 years के स्टैट्स देखोगे, सो देयर जीडीपी इज ग्रोइंग ऑन अ ईयरली बेसिस, एंड इट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. देन ये मिथ थी पहले कि दुबई मेजरली ऑयल पे डिपेंड है. इट्स नॉट लाइक दैट. दुबई इज ओनली डिपेंडेंट, दुबई की इकोनॉमी इज ओनली डिपेंडेंट लाइक 1% ऑन ऑयल, बट उसके अलावा सारी की सारी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन लाइक रियल एस्टेट एंड द टूरिज्म. Then their currency is packed with USD. As everybody know, USD is the strongest currency across the globe, right? So दुबई ने एक पैक बनाया हुआ है, जो AED है वो USD के साथ 3.67 के साथ पैक्ड है. सो irrespective USD अप जाए या डाउन जाए, तो आपका हमेशा दिरहम्स सेम ही रहेगा. सो जितनी बार यूएसडी ऊपर जाता है, जितनी बार इकोनॉमी वर्ल्ड स्टेट पे ऊपर जाती है, सो दुबई की मार्केट ऊपर जाती है. देन देयर आर लॉट ऑफ फ्री जोन्स. सो पीपल हु आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं फ्री जोन में काम करने का. सो अपार्ट फ्रॉम लाइक टैक्स एंड ऑल, थोड़ा जब आप व्हेन यू एस्टैब्लिश अ कंपनी, यू हैव टू पे सम टैक्सेस, बट दीज आर द फ्री जोन. यहाँ पर आपको वो भी नहीं पे करना होता. Then there are a lot of investors, foreign investors who are coming to Dubai and investing and opening their companies because of the rules जो His Highness ने अभी change किए हैं recently. Next slide. These are the world-class events. So if you see the dates also, so अभी भी event हुए थे पिछले हफ्ते तक, and if you see the dates, it's continuously on this year. So across the globe सारे आके यहाँ पे events करते हैं. And this is the list from the Google itself, so you guys also can search. ऐसा नहीं है that these are the fake figures which we are showing you. Next slide, please. Then growing population and demand. This was I was explaining earlier also. In 1950, it's only 20,000 people who are living over there. Those are locals, right? उसके बाद जैसे ही बाहर से लोगों ने अपॉर्चुनिटीज देखी, they started coming to Dubai, और उन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया. They open up their businesses and all those things. So अभी अगर मैं इस ईयर की बात करूंगा, it's approximately 40 lakhs, जिसमें से 80% is expats, locals नहीं है. 20% are the only population which is a local.
उनके लिए अलग ही रूल्स हैं, बट जो 80% एक्सपैट्स आते हैं उसके लिए दुबई बहुत फेवर करता है इन टर्म्स ऑफ रेंटल्स, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो सारी चीजें उन लोगों के लिए कवर होती हैं। And this is exponentially growing because in 2040 there are different plans of Dubai. So it's approximately हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2040 तक it's 60 lakhs के आसपास हो जाएगी, just because of the expo. There are a lot of factors why people are coming to Dubai. Next slide. अब यहाँ से आप देख सकते हो लाइक सारी कंट्रीज इज अप्रोक्सीमेटली इन अ रेडियस ऑफ 6 आवर्स। जो इनर सर्कल्स हैं इट्स हार्डली लाइक 3 आवर्स। लाइक अगर हम दुबई से इंडिया आते हैं थ्री एंड हाफ आवर्स। यूके यूएस की साइड पे आप जाओगे तो थोड़ा बड़ा डिस्टेंस हो जाता है, बस जितनी मेजर कंट्रीज हैं इट विल बी कवर इन 6 आवर्स ओनली। सो ये इसीलिए एक आपका ट्रेड हब है। सो मेजरली सारी ट्रांजिट्स एंड जितनी भी पोर्ट ट्रांजिट्स होती हैं वो सारी दुबई के थ्रू होती हैं। दिस इज द मेजर अट्रैक्शन why people come to Dubai and invest. And rental yield are also high because of this, because lot of job occupancies are there because of only this reason. Then it's a world safest country. If you see, after Finland, Dubai is on like 6.6, and this is a score which we have generated from the website called WEF. So you can check over there also. It's the safest country which is declared by the on the world form. Their compliance and all these things I've already explained. They are very strong. ये इसमें बिल्कुल compromise नहीं करते. This is what a UAE versus the world statistics. So you can see minimum to minimum Dubai is giving you 5.8, where if you see the other countries is it's not even the same thing. And the project which we have come across, जो हमने अभी project हम आगे discuss करने वाले हैं, that is minimum giving you 8% ROI, which is far more better than what we have written in these slides. Can we go to the next slide? This is a quality index. So Dubai has a highest quality of index. ये myth है कि यूके यूएस के अंदर क्वालिटी ऑफ इंडेक्स अच्छा है लाइफ का. इट्स नॉट लाइक दैट. दुबई के अंदर इट्स वेरी वेरी गुड. इट्स द नंबर इज अप्रोक्सीमेटली 170. Purchasing powers बहुत अच्छी हैं लोगों की. Safety index is very high. Then you have a healthcare which is very 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 high. If you go to Dubai, you can feel all these things. And trust me, everything what is governed by His Highness is only in the favor of the people who are living in Dubai and UAE. ये these are the small things. दुबई को हर चीज में हमेशा टॉप पे रहना है. Either it is longest, either it is largest. So इन लोगों ने बुर्ज खलीफा, then you have a biggest mall which is Dubai Mall. They are coming up with the biggest airport which is Al Maktoum Airport. ये एक tallest tower बना रहे हैं. Now if you have read an article 2 weeks back, Dubai is planning something big. आपने पाम जुमेरा सुना होगा, बट अब पाम जबेल अली आ रहा है विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 साइज बिगर देन दैट. ये एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट है नखिल विच इज कमिंग अप विद ऑल द होटल अपार्टमेंट्स एंड ऑल. ये सबसे बड़ा होगा अ मैन मेड आइलैंड in Dubai. So real estate is going to boom in another like 1 year, because these are the major factor why people are looking forward to invest in Dubai. Second thing, what they are bringing up, आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, they are coming up with the moon. So this is a also hotel which is approximately 270 meters. So वो भी एक different concept है. वो दुबई के अंदर कभी मतलब किसी कंट्री में आपने नहीं देखा होगा. It's the same concept. Like जैसे आपका like moon होगा, suppose it's half, so the hotel will bright as half. If it is full, the hotel will bright full. This is also located near to Palm Jumeirah only, approximately 40 floors above. Then so this is full map of Dubai. It's approximately 40 minutes drive from end to end. On the right hand side, this is an old Dubai where all the transitions and everything is happening initial stages. क्योंकि mainly ports सारे यहीं पे थे. Then on the right hand side, top right, you can see there are airports. So DXP and all those areas are over here. Then they build this downtown business way. This is a major hub for the people who are working over there. So mainly ये पूरा शेख जायद रोड के ऊपर है. Then if you go on the left hand side, you have this Palm Jumeirah, Marina and JBR. So all these things is a man-made island and the tallest buildings and blue waters. So majorly अगर कोई भी tourist आता है, this is the major attraction जो जहाँ पर वो जाते हैं, because this is a very beautiful place if an attraction point in Dubai.
देन दिस इज अ वर्ल्ड आइलैंड। इसमें भी अभी कुछ प्रोजेक्ट्स इन लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं, एंड दिस इज अ डायरेक्ट रेप्लिका कि हमारा ग्लोब कैसा दिखता है। इन लोगों ने यहाँ पे एक आइलैंड बना दिया। You have a global village here. So कोई भी अगर दुबई जाता है, they know that global village is one of the beautiful thing. All of the countries के सारे वहाँ पे छोटे छोटे आपको सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि वो कैसे ट्रेड करते हैं, and all those things. So आपको यहाँ पे मिलते हैं. On the left hand side there is world biggest airport which I was mentioning earlier. Uh, ये आपका अल मक्तूम एयरपोर्ट है। Now the beauty about these two locations, Palm Jumeirah and Al Maktoum Airport, हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट आपको अभी हम आगे बताने वाले हैं, the beautiful opportunity is located in middle of this. Okay, so this is 2040 plan of His Highness. दुबई आपने मेनली लोगों को लगता है कि इट्स काइंड ऑफ जैसे हमारा राजस्थान है, राइट? पूरा मड होगा, रेगिस्तान होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, बट दुबई 2040 के अंदर, ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, इट्स ऑलरेडी प्लान्ड, एंड दुबई जो प्लान करता है दे हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड बिफोर टाइमलाइन। पूरा ग्रीन कर रहे हैं वो। इवन जो आपकी रोड्स होंगी सारे ट्रीज होंगे वहां पे। सो आपको आपको जेन्युइनली एक ऐसी कंट्री मिलने वाली है जहाँ पे कुछ रियल नहीं होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर प्लानिंग टू गिव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ जो वहां पर लोग रह रहे हैं। सो दिस इज अ मैप जो आपका 2040 के अंदर हो जाएगा, एंड देयर इज अ स्मॉल वीडियो आल्सो आफ्टर दिस, प्लीज हैव अ लुक कि व्हाट इज द प्लान ऑफ दुबई आफ्टर लाइक 20 years. यू कैन सी गाइस, दुबई ऐसा अभी नहीं दिखता इफ यू गो। काफी मेजर एरियाज हैं जैसे बिजनेस वे, डाउनटाउन, जेबिया मरीना, या फिर आप कोई कम्युनिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको ट्रीज मिल जाते हैं। बट आप सोचो पूरा दुबई अगर ऐसा होगा, सो क्या हम लोग प्लान कर रहे हैं? अगर अभी दुबई के अंदर 7% 8% रिटर्न आ रहा है, सो आगे 20 years के आसपास आप देख सकते हो जो मेजर फॉल्ट है दुबई के अंदर, जो लोग नहीं आते, दिस विल बी द फ्यूचर ऑफ दुबई। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? And by the way, this is not our video. This is over the internet, so you guys can also see this. Okay, so now moving to the project, why we are here for. This previous slides was why to invest in Dubai, what are the major key points, but now we are moving towards the project. So this is a Al Furjan. Al Furjan is a location near to this JBR Marina, Palm Jumeirah side. So on the left hand, at the top bottom, if you see, जो नीचे वाली side आप देख रहे हो जहाँ पे पिन पॉइंट लोकेशंस हैं, ये सारा अल्फुरजान एरिया, इट्स काइंड ऑफ अ कम्युनिटी। सो अगर आपने अभी न्यूज सुनी होगी, दुबई के अंदर गुरुद्वारा खुला था, दुबई के अंदर मंदिर आया था, दिस इज इन दिस लोकेशन। सो अल्फुरजान इज द ओनली प्लेस आफ्टर बर दुबई जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पे गुरुद्वारा है। सो इट्स अ वेरी lucrative प्लेस फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट और लिव इन दुबई, जिनको इंडियन क्लाइंट्स के लिए बेसिकली, जिनको मंदिर एंड गुरुद्वारा के पास रहना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ से आपका जेबीआर मरीना और पाम जुमेरा हार्डली 10 मिनट्स का है। ऑन द टॉप आपको एक रोड दिख रही होगी, दैट इज योर शेख जायद रोड। सो मेजर रोड है पूरे दुबई के लिए, उसको लाइक इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसके बाद इस लोकेशन के अंदर आपके स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा मॉल है विच इज इब्न बतूता मॉल। देन बेस्ट पार्ट इज शेख जायद रोड पे तो मेट्रो लाइन है ही, बट फ्रॉम शेख जायद रोड, फ्रॉम जेबीआर मनीना आपकी एक मेट्रो लाइन अंदर आती है, जो इसी पिन पॉइंट लोकेशन से, जो आपको दिख रहा है सारे पिन लोकेशंस, इसी के पास से एक मेट्रो लाइन निकल रही है विच इज ऑल्सो अ ग्रीन लाइन, विच इज कॉल्ड एज ग्रीन लाइन, जो आपकी डायरेक्टली एक्सपो को कनेक्ट करती है। और ये जो लोकेशन है इसके पास से
एक दुबई ने एक नया इनिशिएटिव लिया था फ्यू इयर्स बैक। जैसे हमारे इंडिया के अंदर सारी सिटीज को कनेक्ट करने के लिए वी हैव अ रेलवे सिस्टम, राइट? तो दुबई के अंदर भी, यूएई के अंदर टेक्निकली जितने भी एमिरेट्स हैं, यू हैव 7 एमिरेट्स, सारे एमिरेट्स को कनेक्ट करने के लिए एतिहाद रेल स्टार्ट हुई है। सो एतिहाद रेल आपके इसी लोकेशन के पास से जा रही है। अल मक्तूम एयरपोर्ट इज नियर बाय, एक्सपो साइट इज नियर बाय। अब जो मैं आपको बता रहा था पाम जुमेरा के बाद बड़ी चीज आने वाली है, दैट इज पाम जबेल अली। वो ऑलरेडी, अगर आप गूगल पे सैटेलाइट इमेज देखोगे दुबई की, तो आपको दिख जाएगा पाम जुमेरा के साइड में एक पाम जुमेरा जैसा ही आइलैंड। बट अब वहां पर कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग विल बी स्टार्टेड। वो इसी प्रोजेक्ट से हार्डली 5 मिनट्स दूर है, राइट? सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाऊंगा एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि एक्चुअल में आपको एरियल इमेज से कैसा दिखेगा। सो दिस इज योर फुरजान ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एक आपको लोकेशन दिख रही है अजीजी एम्बर, राइट? सो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। इसी से 500 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा एक और प्रोजेक्ट है विच इज अजीजी पर्ल। सो ये दो प्रोजेक्ट हैं जिसमें हमारे पास इन्वेंट्री है। ये लोकेशन में आप अगर बिल्कुल राइट हैंड साइड पे देखोगे, एक लाइन आ रही है, दीज आर योर मेट्रो स्टेशन विच इज गोइंग टुवर्ड्स द एक्सपो सिटी। ऊपर Kapil, I think you have muted yourself. Please unmute yourself. am I audible? Okay. Yeah, now you're- So Sheikh Zayed Road is above. So from the project is hardly like 2 minutes away, because ये प्रोजेक्ट बिल्कुल आपका हाईवे के ऊपर ही है। सो आप प्रोजेक्ट से निकलते हैं, यू टेक राइट, यू विल कनेक्ट टू द मेजर हाईवे विच इज शेख जायद। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव शेख मोहम्मद बिन जायद। सो ये दो मेजर हाईवेज हैं जो आपका पूरे एमिरेट्स को कनेक्ट करते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव अबू धाबी, राइट साइड में आपका पूरा शारजा, बर दुबई ये साइड आ जाता है। अब लॉट ऑफ पीपल, अब मुझे पता है लाइक जो भी इंडिया से या किसी और कंट्री से इन्वेस्ट करता है, उन लोगों को एक ही लोकेशन ट्रैक करती है विच इज नियर टू बुर्ज खलीफा, राइट? बट दुबई के अंदर ऐसा नहीं होता। दुबई में आप 15 मिनट्स पे, अब देखो आप ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव बुर्ज खलीफा, बर दुबई एंड दिस बिजनेस वे डाउनटाउन एरिया। आप जैसे ही शेख जायद पे चले जाते हो, शेख जायद से आप 30 मिनट्स में पूरे दुबई पे कहीं पे भी जा सकते हो। सो मेजर आपकी प्रोजेक्ट के पास सबसे अच्छी लोकेशन इज दिस पाम जुमेरा राइट नाउ। जेबीआर मरीना ब्लू वाटर्स इज ऑलरेडी देयर। ये मेजर अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं। राइट साइड पे अगर आप जाते हो, यू हैव इब्न बतूता मॉल, मॉल ऑफ एमिरेट्स, एवरीथिंग इज नियर बाय टू योर प्रोजेक्ट। लेफ्ट साइड में अगर आप कॉर्नर के अंदर टॉप कॉर्नर में एक आइलैंड देख रहे होंगे, दिस इज द बिगेस्ट थिंग विच इज कमिंग इन दुबई। पाम जुमेरा से 10 टाइम्स बड़ा होगा ये। और ये आपके प्रोजेक्ट से हार्डली 10 मिनट्स के आसपास होगा। 10 to 5 मिनट्स में आप यहाँ ड्राइव करके जा सकते हो। सो आप ये सोचो कि जो दुबई बिल्कुल प्लान कर रहा है अनदर लाइक 10 years के अंदर, जो सारी चीजें होटल्स एंड एवरीथिंग, जो क्योंकि पाम जुमेरा इज लाइक फुल राइट नाउ, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि नई कंस्ट्रक्शन आएगी। थोड़ा सा जो आपकी फॉन्ट्स हैं, लीव्स हैं, उन लीव्स के ऊपर कुछ विलाज हैं जो बचे हैं, बाकी एवरीथिंग इज सोल्ड आउट ओवर देयर। बाकी अब यहाँ पर सारी कंस्ट्रक्शन होगी। ओके, नाउ द ब्यूटी अबाउट दिस लोकेशन इज, ये एक अकेली लोकेशन है विच इज ओनली स्टार्टिंग आफ्टर इंडस्ट्रियल एरिया। सो अगर एम्बर प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हो उसके लेफ्ट साइड पे इज प्योर इंडस्ट्रियल एरिया विच इज कॉल्ड एज जबल अली। सो अगर आप लोगों ने सुना होगा एरिया जबल अली, जहाँ पर सारा ट्रांजिशन होता है पोर्ट से। सो अब जब नया एयरपोर्ट खुल जाएगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पर आपको एक्सपो सिटी दिख रहा है, एक्सपो सिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे आपका न्यू एयरपोर्ट आ रहा है विच इज अल मक्तूम। तो अब दुबई के अंदर क्या होने वाला है, जितनी भी ट्रांजेक्शन आपकी बर दुबई साइड पे होती थी पोर्ट के थ्रू एयरपोर्ट पे, अब वो सारी की सारी यहाँ से जबल अली से लेके अल मक्तूम पे होगी। सो आपको ये चीज पता होगी दैट द पीपल हु आर लिविंग नियर बाय टू द एयरपोर्ट और द पोर्ट्स, वहाँ पे जॉब ऑक्यूपेंसीज बहुत बढ़ती हैं। और जैसी जॉब ऑक्यूपेंसीज बढ़ती हैं, द पीपल लुक विल लुक फॉर द रेजिडेंशियल एरिया। तो सबसे पहला रेजिडेंशियल एरिया इज दिस ओनली। अब अगर मैं ये बात आपको बताऊं कि दिस इज द ओनली प्लेस नियर टू द मेट्रो स्टेशन विच इज वेकेंट राइट नाउ, जहां पर आपको कुछ ऑक्यूपेंसी मिल सकती है या रेजिडेंशियल में डिमांड, आप क्योंकि दिस इज अ हाईली डिमांड एरिया, बट यहाँ पे सप्लाई बहुत कम है। इट्स ऑलरेडी अ कम्युनिटी वेयर यू हैव 50,000 पीपल ऑलरेडी लिविंग। आपके यहाँ पे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यू हैव एवरीथिंग नियर बाय। Okay. On the back end side of this ember, you have Gurudwara and Mandir. On the left hand side, you have all the industrial area, and this is the major highway which is connecting to the those. Apart from this, mall, metro line is approximately 1.5 kilometer from this area.
So आप ये सारी चीजें अगर देखते हो, दिस इज अ वेरी लुक्रेटिव लोकेशन टू इन्वेस्ट फॉर. एंड एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप इस लोकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, the rentals are very high. I'll explain you that what are the rentals which are going on in this location, but in the future slides. Can we move to the next slide? Okay. So ये मैंने आपको थोड़ा बहुत already I've explained you, but I'll give you the glance of the what Azizi is offering to the customer. सो अजीजी आपको एक फ्री मॉर्गेज की फैसिलिटी देता है. यू डजंट हैव टू पे एनीथिंग. जैसे इंडिया के अंदर हमको हर चीज का पैसा देना पड़ता है, हम लोगों ने यहाँ पर इन एक्सक्लूसिव डील के साथ हम लोगों ने एक और टाई अप किया इन लोगों के साथ कि अगर आप हमारे क्लाइंट्स का मॉर्गेज करते हो, यू डजंट चार्ज एनीथिंग. दैट इज ऑन आवर साइड. सेकेंड थिंग, आपके जितना भी प्रॉपर्टी मैनेज होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इन इंडिया एंड योर प्रॉपर्टी इज इन दुबई, राइट? लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स डू दैट. दे डजंट गो एंड लिव टू दिस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. तो उनकी प्रॉपर्टी इज मैनेज बाय अजीजी ओनली, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसके बाद इफ वी गो फॉर द रेंटल थिंग, इन 14 days विल रेंट योर प्रॉपर्टी विदाउट एनी कॉस्ट. सो वो भी हम टेनेंट से चार्ज करेंगे, वो आपसे चार्ज नहीं करेंगे. नाउ डिजायरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. 1 minute from Al Furjan, 7 minutes from Javza. This is Ibn Battuta Mall. Then 1 minute from Sheikh Mohammed bin Zayed, 12 minutes from Expo City, and 25 minutes you can connect any area across Dubai. Let's go to the next slide. These are the already delivered project of Azizi. Azizi is majorly targeting in this area only, which is Al Furjan. Then they have few projects in Palm Jumeirah. They have few projects in Maidan, which is His Highness Place, Sheikh Mohammed bin Zayed, Sheikh, like MBR City, if you have like heard about this term. Then they have few projects in Jadaf. But 19 buildings they have already delivered in Furjan area. So these are the two projects which are upcoming, but they have already delivered 19 buildings. So somebody want to see their constructions and कुछ भी अगर आपको जाके देखना है, feel free and you can go and check those things. Then this is a small video of the Al Furjan location. Okay, next slide. Now I'll explain you what is the project. So what is the corporate deal we have made? Azizi is giving so there are two like benefit for the customers. First one is they are giving a 40-60 payment plan in the market. So you guys are getting a 25-75 payment plan. So इससे अच्छा पेमेंट प्लान पूरे दुबई में कोई भी डेवलपर इस टाइम पे नहीं दे रहा, नियर टू कंप्लीशन, प्लस आपको बीच में कुछ भी नहीं देना. So the payment plan is like this. 3% you have to pay right now, and you can book your apartment. After this, I will give you a 6 months of a period to complete your 25% of the payment. ऐसा कोई भी डेवलपर नहीं है who is giving you 6 months of the period just to complete the 25%. After this, I'll give you a time till possession. आपको कोई पेमेंट नहीं करनी. On possession, you have to pay 75% of the payment. Now, अगर आपके पास, for example, at that time you doesn't have 75% of the payment, I'll come into the picture and tell Azizi, okay, my client doesn't have 75%. What we can do in this case? So Azizi is giving us a 50% of the total value as a mortgage. This is for the international client, but what Azizi is giving us is 50% plus they have given us an option. We can go up to 75 also. So this is an additional added advantage to the customers who are looking for project with us. So one benefit is the payment plan. The other benefit is the flipping option. So in between of these till possession, you guys can flip your property. And for that also, we are the one who is helping you. Plus, Azizi is the one who is helping you because the project is underwritten by us. These are the units which are not in the market. This is the payment plan which is not in the market. So we have an opportunity to grab at least 100 to 150% of the total property value what we are putting at. Suppose we are targeting a 1 million of the property, 1 million dirham की हम property देख रहे हैं.
सो हम लोग उसमें 25%, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख हम लोग अगर डाल भी रहे हैं, या 25,000 अगर हम डाल रहे हैं, 2.5 लाख दिरहम अगर हम डाल रहे हैं, सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ सेम काइंड ऑफ अ रिटर्न व्हाट वी आर पुटिंग एट इन 1 ईयर. अब अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट इज द डिस्काउंट ऑफर वी आर गिविंग यू? हम लोगों ने इस एडिशनल कॉर्पोरेट डील के साथ हमने डिस्काउंट ऑफर भी बनाए हैं. देयर आर टू प्रोजेक्ट्स, एम्बर एंड पर्ल. सो दोनों के अलग अलग डिस्काउंट ऑफर है which can go up to 25%. Then we have some provision where we can look for additional discount, but those are applied, like those are condition applied. Suppose if you want to go with the higher down payments. We have two projects. One is going to deliver in June 24. The other one is going to deliver in December 24. But for a safer side, we are giving you a time frame till 2025. Okay. So this is a small glimpse about the project. We have studios, one bed over there with the starting price of 470. Guys, in the previous slide, you have seen 550. We have some units at 550. But suppose if you go in this week or the next week, we can give you some offer at the price of 470 also. This is a very, very lucrative price and down to market thing. अगर आप किसी और प्रोजेक्ट के किसी और एजेंसीज के पास जाते हो या कहीं भी जाते हो, डजंट हैव दीज प्राइजेस. सेकंड थिंग, यू डजंट हैव दीज पेमेंट प्लान. सो ये दोनों बेनिफिट आपको मिलते हैं फ्रॉम अस. This is distance from the other major locations. I have already explained you. There are schools, metro, Gurdwara, Mandir, Etihad Rail, Sheikh Zayed Road, E311, and all these in 5 minute reach. In 15 minutes, you can reach to JBR Marina, Palm, Jebel Ali, ports, Expos, Al Maktoum Airport. Then 30 minutes, you can reach anywhere. So this is kind of a new location where people are looking for the investment. So this is, I've already explained you. Now this is an initiative which we have already discussed with Azizi. Azizi is giving us a fly-in-buy program. Suppose if you go for any property which is worth of 1 million dirham, Indian currency में अगर हम बात करते हैं, it's approximately 2 crores and above. So अगर हम कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं and we invest approximately 3% of that, so we are eligible for fly-in-buy program. अब इसके अंदर क्या होता है, अजीजी विल गिव यू फ्री एयर टिकट्स, आपको वहां पे रहने का, लाइक दे विल गिव यू द होटल्स, आपको ट्रैवल सब कुछ मिल जाता है, ऑल दोस थिंग्स. If you book the unit, those are like excluded from the cost. And if you doesn't book the unit, they have a special policy. They will give you a credit note. So in future, if you want to buy anything in Azizi apart from those projects also, you can go for that. Your money is safe with that. So this is a fly and buy program. Then, so these are the prices I've already discussed with you. Studio starting with 540, but we have few inventories at 470 also. Those are very for a very small time because people are rushing around for this project. These are not the price in the market right now. One bedroom are starting with 700,000, and we have some units of a two bedroom, but only one or two. There is nothing more than that. Okay, so this is a small presentation, guys, for the project. Now I'll tell you that what are the prices which is going on in the market right now. हम लोग अभी 700,000 का वन बेडरूम देख रहे हैं. सो वी आर टारगेटिंग अप्रोक्सीमेटली, अगर वहाँ पे मैं रेडी प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, सेम अजीजी की बात करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ डेवलपर्स इन दैट एरिया आल्सो, बट अजीजी अगर अपनी प्रॉपर्टीज वन बेडरूम इन ऑफलाइन हम लोगों के साथ 700,000 में दे रहा है, तो वो रेडी प्रॉपर्टीज वहाँ पे 9,40,000 की भी बेच रहा है. तो हम अप्रोक्सीमेटली अगर 7 लाख की प्रॉपर्टी आज भी ले रहे हैं, विच इज 700,000 दिरहम, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़, सो हम उसमें अप्रोक्सीमेटली 150,000, 30 से 40 लाख दिरहम हम लोग बना ही रहे हैं. सो उतना ही मैं आपसे इन्वेस्टमेंट मांग रहा हूँ इन अ डाउन पेमेंट, और मैं उतना ही आपको रिटर्न दे रहा हूँ. सो यू गाइज हैव टू ऑप्शंस, ईदर टू फ्लिप इट बिफोर हैंड ओवर और कीप द प्रॉपर्टी, क्योंकि आपका जो मॉर्गेज वहां पे, अच्छा, दुबई का सबसे बेस्ट पार्ट इज दुबई इंटरेस्ट रेट आर वेरी लो. जैसे इंडिया के अंदर हमारा इस टाइम पे 11 के आसपास चल रहा है, बट दुबई के अंदर इस फ्लैट 2.9% गाइस, 2.9%. सो अगर हम 50% मॉर्गेज की बात करते हैं, तो आपकी जितनी इंस्टॉलमेंट आएंगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4,000 से 5,000 दिरहम्स आएंगी महीने की, विच इज 1 लाख. उससे ज्यादा मैं आपको रेंट निकाल के दे दूंगा. सो आपकी प्रॉपर्टी खुद ही अपने आप को पे करेगी. सो आप 25% पे करते हो, उसके बाद आपका 75% हम सिर्फ मॉर्गेज से निकाल देंगे.
For these, ये थोड़ी सी calculation work है, but trust me, this is what people are doing in Dubai. This is called as rent to own schemes, because Dubai is very flexible in mortgages. उसकी भी कुछ कंडीशंस है. वी हैव अ टाइप विद ऑल ऑफ द बैंक्स, मेजर बैंक्स. विद अजीजी खुद भी अपने बैंक्स के साथ टाइप करता है. सपोज इफ यू वांट टू गो विद अस आल्सो, हम लोग आपको वो भी शेयर कर देंगे, और जो भी आपको लोअर इंटरेस्ट रेट दे रहा होगा हम लोग उससे टाइप कर लेंगे. नाउ द रेंटल्स व्हाट वी आर लुकिंग एट दिस लोकेशन फॉर अ स्टूडियो. हम अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो हम साल का 8 से 9 लाख रेंटल मान के चल रहे हैं. और अगर हम 1 बेडरूम में रेंटल्स की बात करेंगे तो हम अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख से लेके 1,60,000 तक मान के चल रहे हैं. Which is in dirhams, if I calculate, 65,000 dirhams is for 1 bedroom, 40,000 to 45,000 is for studios. अब अगर आप प्रॉपर्टी वैल्यूज पे इसकी ROI निकालोगे, so you guys will get approximately 9% on studios and 9% on 1 bedroom. अब सबसे बेस्ट चीज क्या है अजीजी की, is these buildings are chiller free. You doesn't have to pay any chiller cost for your entire life. और सबसे मेजर पैसा दुबई के अंदर चिलर्स पे जाता है, बिकॉज एवरी टाइम दी एसीज आर ऑन, राइट. सो आपको चिलर का पैसा देना ही नहीं है. अजीज इज द वन हु हैज देयर ओन प्लांट्स. वो आपको सप्लाई कर रहे हैं और चिलर का पैसा कम हो जाता है. सर्विस चार्जेस आर ओनली 12 दिरहम्स, which is bare minimum in Dubai right now in any flats. सो आप मान के चलो, अगर आप चिलर का पैसा नहीं दे रहे तो आपका सर्विस चार्जेस 6 दिरहम हो गया ईयरली. So, जो भी स्क्वायर फीट में आपको बता रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 6, those are the dirham value you are paying in entire year. Okay, this is very lucrative option, guys. You can like buy it today, you can sell it tomorrow, because property will be registered under your name from the very first day. You guys are giving 4% to the land department, and Dubai is very flexible in these things. यहाँ पर किसी और कंट्री की तरह नहीं होता. You will get entire help from the Dubai government. Suppose if you doesn't able to pay the future payments also, so ऐसा नहीं है आपकी प्रॉपर्टी वापस ले ली जाती है. दुबई गवर्नमेंट विल गिव यू अनदर 1 or 2 years, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर फ्रेंडली है एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली. इसी वजह से दुबई के अंदर मेजर 80% इन्वेस्टर्स बाहर का है. सो दिस इज अ स्मॉल प्रेजेंटेशन, गाइज. इसके बाद अगर आपको एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क इन द Q&A थिंग, एंड वी गाइज विल हेल्प यू आउट. कपिल जी, इट्स एन आई ओपनिंग वेबिनार, ट्रस्ट मी. अब अभी तक हम वन ऑफ द बेस्ट वेबिनार जो अभी तक हमारा हुआ है वो आज प्रेजेंटेशन हुई हमारी. आई डोंट थिंक, मेरे माइंड में तो कोई क्वेश्चन नहीं है. आपने जितनी भी चीजें कवर करी स्टेप बाय स्टेप, वो चीजें आपने पूरे सीक्वेंस में कवर कर लिया. सो गाइज, आपको पता चल गया कि अभी जो जिस प्राइसिंग में अभी हम लोग अजीजी का जो अभी हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, जो भी अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, अजीजी का अपार्टमेंट बाय करता है, ऑलमोस्ट 1.5 CR के अप्रोक्स हमारा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, जिसमें हमको अभी सिर्फ 3% अमाउंट पे करना है बुकिंग के लिए. मतलब उसको बुकिंग अमाउंट, टोकन अमाउंट उसको हम बोल सकते हैं. और मार्केट प्राइस से ऑलरेडी हमको वो कम प्राइस में मिल रहा है. तो सारी की सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर है. अगर आपके माइंड में कुछ चीजें हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कपिल जी से रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग कपिल जी, मुझको आपसे एक चीज पूछनी थी कि कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ से प्लान करता है तो फिर उसका मोड ऑफ पेमेंट कैसे रहता है वहां से, यहाँ से अगर वहां उसको फंड्स ट्रांसफर करने के लिए? ओके, सो अगर आपको फंड्स ट्रांसफर करना है, यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन ऑल्सो. अगर आपको ओके, ब्यूटी क्या है अजीज जी का, माइट बी देयर आर फ्यू कस्टमर्स जिनके पास कैश होगा फुल. सो वी हैव मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस अवेलेबल, एनी मोड. लाइक आप क्रिप्टो में भी दे सकते हो, यू कैन गिव फुल कैश ऑल्सो. आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो. इफ यू हैव बैंक अकाउंट्स इन लाइक किसी और कंट्री में भी है, हम वहां से भी ट्रांजेक्ट कर सकते हैं. सो मोड ऑफ ट्रांजेक्शंस का कोई इशू नहीं है. आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर डाल सकते हैं. प्लस तो आप अगर रेंटल के टाइम पे बोलते हो कि हमारा रेंटल कैसे आएगा, दैट इज ऑल्सो, अब जो अकाउंट बोलोगे या आप कैश में करते हो, हम लोग उस पर भी मैनेज कर लेंगे. ऑलराइट ऑलराइट. सो आप लोगों में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो कपिल जी से पूछ सकते हैं. अदरवाइज कपिल, आपसे तो मैं अभी पर्सनली कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास काफी चीजें हैं पूछने के लिए आपसे, जो आई थिंक बहुत क्लाइंट्स की क्वेरीज होती हैं. तो श्योर श्योर 1 to 1 हम श्योर. लोग को रिजॉल्व करेंगे जो भी आई. तो आई डोंट थिंक यहाँ पे हमको करना है, क्योंकि कन्वर्सेशन काफी लंबी हो जाएगी. सो गाइस, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कपिल जी से पूछ सकते हैं. आशुतोष, मेरा एक क्वेश्चन है. जी प्लीज. ये जो 25% के बाद जो 75% पेमेंट है वो कैसे होनी है सर, और कब होनी है, कितने टाइम फ्रेम में होनी है? 75% आपका ना पोजीशन पे रहेगा. सो सपोज इफ यू आर गिविंग यू बिल्डिंग इन June 24,
सो ऑन पोजीशन यू हैव टू पे 75%. जैसे ही आप 75% दे देते हो, यू विल गेट द कीज. और एंड आपने, स्नैगिंग. हाँ जी, आपने सर नहीं नहीं, एक पॉइंट और बोला था कि अगर कोई इन्वेस्टर के पास 75% नहीं होता तो उस केस में क्या है, मतलब वो क्या, ओके. आपका रोल क्या है फिर उसमें? उस केस के अंदर क्या है, हम लोगों ने अजीजी के साथ एक नॉर्मली क्या है, दुबई हैज अ रूल कि जो भी एस्पैक्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल बायर हैं, जो दुबई में नहीं रहते हैं, उनको वो 50% मॉर्गेज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीज बैंक अकाउंट. तो सपोज हम अगर इंडिया के अंदर हैं अभी, तो हमको 40,000 दिरहम, विच इज इक्विवेलेंट टू आई थिंक 9 लाख, हमें ये 6 महीने तक मेंटेन करके रखना होता है. सो हमारे पास इनफ टाइम होगा. ऐसा नहीं है कि मान लो प्रॉपर्टी हमारी अगले 3 महीने में नहीं मिल रही है, तो अगर आप मेरे को बीच में बोलते हो कि यार ठीक है, हम 75% अरेंज नहीं कर पाएंगे ऑन हैंड ओवर, सो आई गिव यू 6 मंथ्स ऑफ पीरियड. आप उसमें अपना 9 लाख मेंटेन करो, एटलीस्ट यू आर एलिजिबल फॉर 50% मॉर्गेज. बट सपोज अगर हम 50 से ऊपर जाना चाहते हैं, सो अजीजी ने हम लोगों को एक ऑप्शन दिया है फॉर द कस्टमर. जो हमारे पास कस्टमर्स होंगे, हम उनको 50 से ऊपर भी ट्राई करेंगे अप टू 75. तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का पूरा 75% भी मॉर्गेज करा दें, बट 50% इज द बेयर मिनिमम व्हाट वी आर गिविंग इट. ठीक है सर। और सर इसका ओके. मैनेजमेंट जो है, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडिया से इन्वेस्ट कर रहा है तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कैसे होएगी, मतलब वो अजीजी के थ्रू होएगी कैसे, मतलब और उसके क्या ओके. चार्जेस हैं? सो देखो, प्रॉपर्टी मैनेज का क्या है, आप खुद भी कर सकते हो. इट्स नॉट अ बिग डील इन दुबई. आपका जो भी टेनेंट होगा, वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में भी दे सकता है. तो अगर टेनेंट्स नहीं रखने हैं आपने, और आप बोल देते हो कि ठीक है, मेरे को एयरबीएनबी पे डालना है या शॉर्ट टर्म रेंटल्स पे डालना है, देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज इन दुबई, आप उनको भी टाइप दे सकते हो. प्लस अजीजी आपको फैसिलिटी दे रहा है कि ठीक है, आपको कहीं और नहीं जाना. सो वेरी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अजीजी आपके लिए ना एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. आप वहाँ पे रेंटल के लिए बात कर लो, 14 डेज में आपको रेंट करके दे देगा. आप बोलते हो हमारी प्रॉपर्टी मैनेज करनी है, तो वो भी कर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट. और कुछ बेयर मिनिमम चार्जेस आते हैं, तो शायद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अंदर फ्यूचर के अंदर होगा, बट राइट नाउ दे हैव डिसाइडेड टू चार्ज नथिंग टू आवर कस्टमर्स. एंड दिस इज ऑलरेडी दे हैव डूइंग विद माय पास्ट लाइक अर्लियर कस्टमर्स आल्सो. तो मेरे काफी इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया से भी हैं, यूके, देन यू हैव साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड ऑल दोज एरियाज. सो इन सब लोगों ने प्रॉपर्टी वहां पे मैनेज करा रहे हैं, और किसी को कोई इशू नहीं है. तो सर ये तो बहुत अच्छा है कि मतलब प्रॉपर्टी मैनेज भी हो रही है, वो भी मतलब विदाउट एनी कॉस्ट, तो ये तो बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली. ठीक ओके. है सर, थैंक यू। एंड डन कपिल, डन. एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था, व्हाट इज एप्रिसिएशन रेट? एक आप चैट पढ़ के देखिए, पंकज चौहान की तरफ से है ये. व्हाट एप्रिसिएशन रेट पर ईयर फॉर, व्हाट इज द चांसेस ऑफ? Okay, what is the chances percentage of appreciation if we sell before possession? Okay. सो यही मैं आपको बता रहा था, मार्केट इस टाइम पे चल रही है वहां पे. अगर आप सेकेंडरी की मार्केट देखोगे, तो उसके अंदर भी जो प्राइजेस ऑफ वन बेडरूम आपके 8 लाख दिरहम के हैं. पहली चीज. दूसरा, जो प्राइमरी मार्केट है, उसके अंदर 947 की ट्रांजेक्शन हुई है लास्ट वीक ओनली. सो आप लोगों को अगर वो चीजें फिगर्स चाहिए होंगी, आई शेयर यू द स्क्रीनशॉट्स आल्सो, बिकॉज हमने अभी एक हफ्ते पहले ही वी हैव डन एन इवेंट आल्सो, वहां पर हम लोगों ने शेयर करी. आई शेयर यू पिक्चर्स. तो 947 का रेडी प्रॉपर्टीज का प्राइस है उस एरिया में. सेकेंडरी प्रॉपर्टीज का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 8 लाख दिरहम है. मैं आपको 7 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, दैट टू मैं आपसे सिर्फ 25% मांग रहा हूँ. अब जो बंदे 8 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या 947 की ले रहे हैं, वो 100% दे रहे हैं, बिकॉज दोज आर रेडी. वो 100% की प्रॉपर्टी लेके बेचेंगे. मैं आपको 25% की प्रॉपर्टी देने के बाद बोलता हूँ, अगर आप 40% भी क्लाइंट से निकाल के फ्लिप कर देते हो, सो यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 100,000, तो सेकेंडरी से ही कमा रहे हो आप. तो अगर आप मान के चलो, मैं आपसे बोलता हूँ 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, तो मेरे को आपसे 2.5 लाख दिरहम चाहिए होगा. 1 लाख तो ऑलरेडी आप मार्केट कैप से बैठे हो ना. सो आप 2.5 लाख पे 1 लाख कमाते हो, सो यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड 40% एप्रिसिएशन. आप पूरी वैल्यू पे मत देखो, आपने जितना पे किया, अगर आप पोजीशन से पहले बेच रहे हो. और आप अगर पोजीशन पे बेच रहे हो, तो आपने 100% पे कर दिया. तब तक तो दुबई का रूल है. सो दुबई हैज अ सिंपल रूल. जो भी प्रॉपर्टी अगर आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तब से लेके हैंड ओवर तक, देर आर 3 स्टेजेस: प्री कंस्ट्रक्ट, प्री लॉन्च, लॉन्च, कंस्ट्रक्शन एंड हैंड ओवर. इन तीनों फेजेस में 15 से 20% प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते हैं. अगर आप पूरी प्रॉपर्टी पे प्राइस बढ़ना देखना चाह रहे हो, तो 20% तो दुबई का बेयर मिनिमम है, जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑन पोजीशन. उससे पहले बेच देते हो, तो मैं आपके सिर्फ 25% ले रहा हूँ, और उस 25% पे आपको मैं एटलीस्ट 40 से 50% तो बेयर मिनिमम दे रहा हूँ.
बट हम टारगेट कर रहे हैं हम एटलीस्ट 100% निकाल के दें अपने सारे कस्टमर्स को, बिकॉज उस एरिया में ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स 9 लाख दिरहम का बिक रहा है। सो आप ऑलरेडी 2 लाख दिरहम नीचे बैठे हो मार्केट प्राइस से। सो दिस इज द बेनिफिट व्हाट वी हैव मेक अ डील विद अजीजी। इसीलिए हम लोग इतने कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट को लेके, बिकॉज वी नो कि ये प्रोडक्ट तो सेल आउट हो जाएगा। एंड यू वोंट बिलीव, हम लोगों ने ये इन्वेंट्री स्टार्ट करी थी एक वीक पहले, एंड वी हैव ऑलरेडी सोल्ड अप्रोक्सीमेटली 10 यूनिट्स, दैट टू द इंटरनेशनल क्लाइंट्स। अभी हमने लोकल मार्केट में टारगेट ही नहीं करा, एंड वी हैवंट कैंपेन्ड एनीथिंग। अमेजिंग 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 अमेजिंग। ऑलराइट। सो कपिल, आई थिंक किसी को अगर कुछ और क्वेरीज होती हैं तो मैं आपसे 1 to 1 कनेक्ट करता हूँ। अगर किसी को कुछ अभी भी पूछना है तो आपसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे से कनेक्ट करके फिर हम लोग कपिल जी से 1 to 1 कनेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है कपिल, एंड थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच। मच। थैंक यू गाइस, बाय बाय। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पंकज जी, उसके लिए आप ना मेरे से कनेक्ट करिए कुछ और क्वेश्चंस के लिए, जो अगर आपके हैं तो मैं आपको नंबर अपना चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, सेव माय नंबर। आप मुझसे 1 to 1 कनेक्ट करिए, मैं आपके सारे क्वेश्चन को रिजॉल्व करता हूँ और आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास इसमें है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है। सो गाइस, सेशन को वाइंड अप करते हैं एंड हम लोग कनेक्ट करते हैं सेशन के बाद। अब थैंक यू सो मच।